Hello friends, welcome to my channel. I wish you a very happy new year. And before we start with the predictions for January 23, let us quickly look at how this year is going to pan out for you. Now in any year only three transit matters, that of Saturn, Jupiter and the pair of Rahu and Ketu. This is because these are the three planets that have the ability to give you maximum results since they stay in one sign for a very long time. Now, Jupiter is currently staying in the fourth house where it will remain till the end of March. And here, Jupiter is going to create opportunities for you at the workplace because it is going to aspect the 10th house directly. And it is also going to create the possibility of buying a property, especially the immovable property, till the end of March. In the beginning of April, Jupiter is going to move into the fifth house, so it is going to give you an opportunity to plan for a child in the time frame of June 2023 to April 2024. Rahu will combine here with Jupiter in May and June. So this is the time frame to be very careful if you already have a child, or if you have someone who is expecting a child at home, then just make sure that you are taking good care of their health, especially between the 2 months of May and June. People in speculation should also stay away for the remaining of the year. Saturn in the third house, it will be joining in Aquarius on 16th of January. So Saturn in third house would mean accepting responsibility for your younger siblings, making a tremendous effort for the things that you want because third house also showcases efforts, and trying to turn vegetarian at least in the 2 months of May and June. Jupiter in the fifth house will aspect your house of fortune through its fifth aspect, and will aspect your ascendants through his ninth aspect, and it is going to trigger luck in your favor in the 2023 and will also provide you stability in your life during this year. Now let us look at the predictions for January. In January, Jupiter continues to pass through the fourth house, and the ascendant lord passing through the fourth is an excellent position. This Jupiter will continue to provide you mental peace and domestic happiness and chances to improve your relation till the time it is sitting here. So March 23 end, you will have the same kind of a scenario, and Jupiter will also help you to buy property as I indicated earlier. Mercury is the seventh house lord as well as 10th house lord, so it's a very important planet for your ascendant. This Mercury is going to combine with Sun in the month of January. So as a result, your spouse will be able to communicate better with you. He or she will reach out to you and bring clarity in communications. You will be able to set expectations from each other in a much better manner. Seventh house is also the house of business. So if you have your own business, then you will get an opportunity to increase the width of your business in this month. If you want to start a new business, especially any business in partnership, then this is the right time to do so. You will also get a good business opportunity in the first half of January. Mars is passing through the house of service or job. So people who are in job will bring a lot of energy to their work in this month. The best date for those who are in service will be from 10th to 12th of January and 25th to 28th of January. These are also the dates where you can switch to a new job, or people who are trying to find a new job. These dates will again favor them. Sixth house lord is Venus, and it is going to form a trine relationship in the month of January with the house itself. So your health is going to remain in a very good shape in January. The one key point which you should be cautious about is that if you are appearing for any kind of a job interview, then you should avoid appearing for an interview on 5th and 6th of January because the stars will not be favoring you. Rahu in the fifth house would mean student will have to be very disciplined in their approach. Stock market is going to become a very deceptive place in January, and you should not speculate till Rahu is placed here. Rahu sitting here also creates differences with your progeny, so you should avoid any arguments with your kids. It doesn't matter whether they are teenagers or grown up. Arguments have to be avoided at all cost. Saturn, as I said earlier, will come into the house of effort on 16th of January, and its exit from the house of self-earned wealth will bring a lot of relief to you. This Saturn is now going to
aspect or the ninth house for the rest of the year, and this planet is going to bring you an opportunity to create your own luck depending on the intensity of effort that you can put for the next 2.5 years, because Saturn will remain posited here till 25. So it all depends on you what effort you can do in the next 2.5 years to excel at your workplace. One of the remedies of Saturn is to feed poor people with home cooked food every Saturday. This helps in mitigating a lot of evil effects of Saturn. Now, there are also certain dates when you need to be very cautious, and the dates for you in the month of January are 3rd and 4th of January, 8th and 9th of January, and 17th and 18th of January. Just avoid taking any key decisions during these 6 days. In short, this is a month for excelling at your workplace, starting a new business, and building rapport in your relationships, especially with your spouse and business partner. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बधाइयां देता हूं। और इसके पहले कि हम लोग जनवरी 2023 का प्रिडिक्शन देखें, एक क्विक नज़र मारते हैं कि 2023 साल आपके लिए कैसे निकलेगा। देखिए, किसी भी साल के ट्रांजिट में खाली 3 प्लैनेट्स का ही महत्व होता है, शनि, गुरु और राहु और केतु की जोड़ी, क्योंकि ये इस तरह के ग्रह होते हैं कि एक घर में बहुत लंबा समय तक रहते हैं और इसलिए इनका प्रभाव आपको गोचर में ज्यादा तौर पे देखने को मिलता है बजाय बाकी प्लैनेट्स के। राहु और केतु छिद्र बिंदु हैं, अर्थ के बहुत नजदीक लोकेटेड हैं, तो उनका आपके ऊपर चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा शनि और गुरु आकार में बहुत बड़े हैं, तो उनका प्रभाव अपने आकार की वजह से बहुत ज्यादा पड़ता है। और जैसा मैंने बताया, ये लोग एक राशि में बहुत लंबा समय तक रहते हैं, इसलिए कुछ विशेष फल दे पाने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए मार्च तक इसी घर में बैठा रहेगा, चतुर्थ भाव में, और आपके कर्म स्थान को देखता रहेगा, तो ये आपके लिए आपके कार्यस्थल पे मौके बनाता रहेगा। इसके अलावा जब गुरु पंचम भाव में मूव कर जाएंगे अप्रैल 2023 में, तो अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक ये आपको संतति प्लान करने का एक मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि उनकी युति होगी राहु के साथ मई और जून में, तो सबसे अच्छा समय जून के बाद ही है। जून मिडिल से लेके अप्रैल 2024 तक आपके लिए अच्छा समय है। आप अपना संतति के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई एक्सपेक्टेड मदर है, तो उसका भी आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा मई और जून के महीने में, क्योंकि ये राहु की युति होगी गुरु के साथ, और इसलिए गुरु चूंकि संतति का कारक है, तो राहु उनके कारक तत्वों में छिद्र लगाने का काम करेगा। 2 महीने के बाद जब ये युति निकल जाएगी, उसके बाद अपने आप ही स्थिति में सुधार होने लगेगा। अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, तो आपको अप्रैल 2023 के बाद शेयर मार्केट में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है। पंचम भाव वैसे भी आपका शर्त का और सट्टेबाजी का स्थान है, और राहु यहाँ पे बैठ के उसके सारे कारकों को खराब करेगा। इसलिए हो सके तो अपना पार्टिसिपेशन मार्केट्स में बहुत कम रखिएगा इस समय में। अगर आप शाकाहारी खाना लेना शुरू कर दें, खास करके मई और जून के महीने में, तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। गुरु जब पंचम भाव में मूव कर जाएगा जून 2023 के बाद, जब राहु की युति खत्म हो जाएगी, तो ये आपको आपके पूरे परिणाम देने लगेगा। यहाँ पर ये अपनी मित्र राशि में बैठेगा, मंगल की 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेगा, तो यहाँ पर ये आपका लक को बढ़ाएगा, और नवी दृष्टि से लग्न स्थान को देखेगा, तो आपका वजन भी बढ़ाएगा, लेकिन आपको जीवन में स्थायित्व भी प्रदान करेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपका लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो उसका त्रिकोण से भ्रमण यानी पंचम भाव से भ्रमण बहुत अच्छा कहलाता है। खाली चूंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बनेगा 2 महीने के लिए, मई और जून में। नहीं तो अदरवाइज ये ट्रांजिट बहुत अच्छा कहलाता है। शनि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे 16 जनवरी से, और यहाँ पे अभी तक पिछले 2.5 सालों में, यानी मार्च 2020 में जब ये मकर राशि में आए थे, तब से लेके इन्होंने आपके लिए पैसे के मामले में बहुत किल्लत बना के रखी होगी। आपको मनी का जो फ्लो है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो अब ये खुलना शुरू हो जाएगा, ये तृतीय भाव में आएगा। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो कई बार आपके ऊपर इस समय में आपके छोटी भाई या बहनों की जिम्मेदारी आन पड़ती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे अगले 2.5 साल में, और आप जितने ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शनि
तृतीय भाव में आया है, शनि कर्म कारक है, एफर्ट्स का ही ग्रह है वो, और भाव में भी अपने फेवरेबल आया है। शनि तीसरे, छठवें, नवे और 11वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम देता है, तो यहाँ पर तीसरे भाव में यानी कि उसका फेवरेबल हाउस है, और यहाँ से ये सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को भी देखेगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको अगले 2.5 सालों में आपका लक आपको फेवर करेगा। अभी एक नज़र जनवरी 2023 के प्रोडिक्शंस पे डालते हैं। देखिए, लग्नेश चतुर्थ भाव से ही भ्रमण करेंगे, जैसा मैंने बताया था पिछले 1 साल से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। लग्नेश का चतुर्थ भाव से भ्रमण मानसिक शांति प्रदान करता है और घर का माहौल बहुत सुखद बनाता है। तो ये स्थिति आपकी मार्च 2023 तक बनी रहेगी। यहाँ पे गुरु आपको कर्म स्थान पे उन्नति करने का मौका देता है, क्योंकि वो सातवीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखता है। इसके अलावा ये आपको प्रॉपर्टी खरीदने का भी मौका देता है इस समय में। तो ये मार्च 2023 तक ये अच्छा समय है आपके लिए इन सारी चीज़ों से लेकर। इसके बाद गुरु आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, और जैसा मैंने एनुअल ट्रांजिट का बताया था आपको पहले, उस तरह के आपको परिणाम मिलेंगे। बुध सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी है, तो आपका कर्मेश बुध बनता है, और वो अभी लग्न से भ्रमण कर रहा है, जहां वो सूर्य के साथ युति करेगा जनवरी के महीने में। सप्तम भाव से आप अपना स्वयं का व्यवसाय देखते हैं, आपके पति या पत्नी देखते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स को देखते हैं। तो चूंकि सप्तम भाव का स्वामी प्रथम भाव में गया है, तो ये लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, और आपके पति या पत्नी के साथ कम्युनिकेशन में बहुत सुधार होगा। आपका जो स्पाउस है वो आपको काफ़ी बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा कि उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड द अदर वे राउंड। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है एक अच्छा नया कम्युनिकेशन का चैनल खोलने का अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ जनवरी के महीने में। यहाँ पे ये बुध आपको अपने बिजनेस में कुछ नया चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का मौका दे रहा है। कई बार आप देखेंगे कि लोग नए ब्रांचेस खोलते हैं बिजनेस में, या फिर नए उनके बिजनेस का एक्सपेंशन होता है अलग अलग तरीकों से, तो वो उस तरह का आपको विड्थ बढ़ाने का मौका दे रहा है बिजनेस का जनवरी में। अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी ये बहुत ही एप्ट समय है, और आपको जनवरी में 20 जनवरी तक कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपके बिजनेस में उन्नति करने का। मंगल अभी छठवें भाव से ही भ्रमण करते रहेंगे। मंगल आपके सर्विस या जॉब वाले स्थान से निकल रहा है, तो जितने भी लोग जॉब्स में हैं वो काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने कार्यस्थल पे। अगर आप कोई भी नए नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, या आप अपने जॉब में भी अच्छे दिन देखना चाह रहे हैं, तो जनवरी में 10 से 12 जनवरी और 25 से 28 जनवरी बहुत अच्छी डेट्स हैं आपके जॉब्स में आगे बढ़ने के लिए। और ये इन्हीं दिनों में जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है या नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी यही डेट्स अप्लाई होती हैं। छठवें भाव का स्वामी शुक्र बनता है, और वो जनवरी के महीने में आपके भाव के साथ नवपंचम योग बनाएगा। तो आपके लिए हेल्थ बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेगी जनवरी में, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक जो आपको बात नोटिस करनी है कि अगर आप नौकरी ढूंढने में कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 5 और 6 जनवरी का डेट आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप इंटरव्यू में निकल नहीं पाएंगे, पास नहीं होंगे। तो कोई भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं, तो 5-6 जनवरी को छोड़ के कभी भी आप अपीयर हो सकते हैं। राहु पंचम भाव में बैठा रहेगा, और यहाँ पे इसका बैठना यानी स्टूडेंट्स को बहुत ही डिसिप्लिन्ड होके काम करना पड़ेगा। राहु एक मृग तृष्णा का ग्रह है, ये व्यक्ति को अलग अलग तरीके के सपने दिखाता है, और वो उसको एक ऐसी दुनिया में फेंक देता है जहां से वो तभी निकलता है जब ये राहु का प्रभाव उस पर से हट जाता है, और तब तक अर्श से फर्श पर आना जिसे हम कहते हैं उस तरह की बात हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल डिसिप्लिन रह के काम करना है यहाँ पे। अगर आप शेयर बाजार से संबंधित हैं, और अगर आप शौकिया तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है, तो राहु यहाँ पे जब तक बैठा हुआ है नवंबर 2023 तक, तब तक आप शेयर बाजार की तरफ देखिए भी मत। राहु जैसा मैंने बोला मृग तृष्णा का ग्रह है, तो आपको ये अलग अलग तरह के प्रलोभन देगा शेयर बाजार में। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप कितना करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, और फिर आपको ऐसे गिराएगा कि सारा पैसा खींच लेगा। तो यहाँ पे जब तक राहु बैठे हैं नवंबर 2023 तक, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10-11 महीने की बात है, तब तक आप मार्केट में मत उतरिए। पंचम भाव का राहु आपकी संतति के साथ भी आपके संबंधों को खराब करता है। तो आपके अगर टीनेजर बच्चे हैं या थोड़े और बड़े भी हुए उम्र में, तो उनके साथ वाद विवाद मत कीजिए। आप अपने पति या पत्नी को उनके साथ डील करने के लिए आगे भेज दीजिए। शर्त यह है कि आपका पति या पत्नी भी धनु लग्न का नहीं होना चाहिए। उनको टैकल करने दीजिए अपने बच्चों को, भले आप कम्युनिकेट करें, लेकिन अपनी स्पाउस के थ्रू कीजिए। शनि, ऐसा मैंने पहले बताया, आपके एफर्ट के हाउस में आ गया है, तो यहाँ पर
पिछले 2.5 सालों में जो पैसे की तंगी बनी हुई थी, शनि यहाँ पर मार्च 2020 में एंटर किए थे जब कोरोना का काल जस आया था उस समय। तो यहाँ पे आपके पैसे के काफ़ी रिसोर्सेज ड्राई अप हो गए होंगे, तो अब खुलने शुरू होंगे। तृतीय भाव एफर्ट्स का भाव बनता है, और यहाँ से ये आपके भाग्य स्थान को देखेगा सप्तम दृष्टि से। तो अगले 2.5 साल में आपका भाग्य कितना चमकेगा ये प्योरली आपके एफर्ट पर निर्भर करेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे उसी के हिसाब से आपका लक आपको साथ देगा। शनि का एक बहुत अच्छा तोड़ होता है कि आप गरीब लोगों को, दबे कुचले लोग जो होते हैं, बड़ी मुश्किल से जो गुजर बसर करते हैं, उनके लिए आपका घर का बनाया हुआ खाना दीजिए उनको हर शनिवार को। इससे शनि के खराब परिणामों को टैकल करने में बहुत मदद मिलती है। अब जनवरी के महीने में जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो है 3 और 4 जनवरी, 8 और 9 जनवरी, और 17 और 18 जनवरी। इन 6 दिनों में आप सावधान रहिए और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। अगर आप ओवरऑल देखिए तो लग्नेश का चतुर्थ भाव से भ्रमण ही अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा ये समय है कि आप अपने बिजनेस में या सर्विस में एक्सेल करिए इस महीने में, और अपना रिलेशनशिप या रैपो बनाइए अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।